अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो फ़िलासफ़ी की तीसरी ब्रांच है दैट इज़ एक्सियोलॉजी। आज एक्सियोलॉजी पे बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सियोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉरल फ़िलासफ़ी because it is that study, it is that branch which deals with the standards of life, which deals with the rules of life, which deals with the criteria of living life, which deals with worth, which deals with worthy life. My dear students, let's try to find out the literal meaning of axiology. Literally जब हम बात करेंगे axiology की, it has been derived from Greek word axios, which means values, and logy, which means study. So my dear students, literally हम कह सकते हैं that axiology is the study of values, is the science of values. तो philosophically हम कहेंगे this is the science of values, which studies the kinds of values, which studies the nature of values, and which we study about the theories of different values. Now, my dear students, the first question arises, what is a value? हम किस चीज़ को वैल्यू कहेंगे, यानी किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं. When we say that axiology is the study of values, we must know what is a value. वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो फिलोसॉफिकली हम कहते हैं वैल्यू जो है इट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल, it is the worth, is something which has worth, something which has price, something which is precious, something which is dear to us. So it has been defined like this: value or values, these are the guiding principles of life, which are conducive in living a worthy life. Means value is something which guides us, which gives us direction that how to live a normal life, how to live in society, how to live the life according some rules of the society, how to live the life according to the standards of the society. Means it tells us about the worthy things of the society, about the precious things of the society, those things which are respected by the society, those things, those laws, those ideas, those are values. Anything that is precious, anything that has worth, anything that has respect in our society, in our personal life, that is a value. So values give us, these are the principles, these are the laws, these are the rules which are helpful in living a worthy life, which are helpful in all-round development, which are helpful in personality development. Means simply something which will help you to adjust with your society, something which will help you to adjust with yourself. That is a value. वही value है. Now, what type of values we study in axiology? My dear students, when we study what is good in action, what is good in human action, जब हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे, what is good in human action, जो इंसान काम करेगा, जो सोसाइटी में रहकर जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे उनमें अच्छा, उनमें किस क्राइटेरिया को, किस चीज़ को हम अच्छाई कहेंगे, क्या किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम किसी चीज़ को गुड कहेंगे और किसी चीज़ को बैड कहेंगे. When we study that, it's called ethics. It is called ethics. यानी जब हम ह्यूमन एक्शन के बारे में एक क्राइटेरिया सेट करेंगे,
whether this human action is good, whether this human action is bad, whether this human action is right, whether this human action is wrong. When we study in such manner, the branch of this axiology becomes ethics. उस ब्रांच को हम ethics कहते हैं, जिस ब्रांच में हम ह्यूमन एक्शंस को वैल्यू देंगे, ह्यूमन एक्शंस की प्रीशियसनेस देखेंगे, ह्यूमन एक्शंस का वैल्यू देखेंगे, ह्यूमन एक्शंस की मतलब उनका प्राइस देखेंगे, उनकी वर्थ देखेंगे, वेदर दोज आर गुड और बैड, वेदर दोज आर राइट और रॉन्ग। जब हम ये चीज़ स्टडी करेंगे, वी आर स्टडिंग एक्सियोलॉजी, और एक्सियोलॉजी में कौन सा ब्रांच? इट इज कॉल्ड द इथिक्स। मीन्स व्हेन it is applied to human actions, when criteria of goodness and badness is applied to human actions, it becomes ethics. When applied to objects, अब हम ऑब्जेक्ट्स पे ये क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, क्या ये ऑब्जेक्ट अच्छा है, बुरा है, कैसा है। जब हम ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, जो हमारे आसपास, जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, जब हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे ऑन द क्राइटेरिया ऑफ गुडनेस एंड बैडनेस, और वी कैन से गुडनेस एंड अगलीनेस, इट बिकम्स एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मीन्स एस्थेटिक्स में हम क्राइटेरिया रखते हैं, समथिंग इज ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटी स्टडी करते हैं, आर्ट स्टडी करते हैं, यानी चीज़ों को स्टडी करके एक क्राइटेरिया देते हैं, वेदर किस चीज़ को हम ब्यूटी कहेंगे, किस चीज़ को हम ब्यूटीफुल कहेंगे, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी, व्हाट इज़ द नॉर्म ऑफ ब्यूटी, व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ गुड इन आर्ट, किस चीज़ को आर्ट कहेंगे, आप किस चीज़ को आर्ट कहोगे, क्या ये मारकर ये आर्ट है, किसी चीज़ को हम आर्ट कहते हैं, किसी चीज़ को आर्ट नहीं कहते हैं। हाउ, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, हम किस काम को आर्ट कहेंगे, हम कभी कहेंगे दिस इज आर्ट, टीचिंग इज आर्ट, समथिंग इज आर्ट, पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना, इट इज आर्ट, व्हाई इट इज आर्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया, इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया है। जब हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे, चीज़ों के बारे में, उनकी गुडनेस, उनकी बैडनेस, उनकी अगलीनेस, जब हम वो स्टडी करते हैं, इट बिकम्स एस्थेटिक्स, दैट वेरी ब्रांच बिकम्स द एस्थेटिक्स। एंड व्हेन अप्लाइड टू रीजनिंग, जब हम रीजनिंग पे अप्लाई करेंगे, ह्यूमन माइंड की इमेजिनेशन पे, उसकी थिंकिंग प्रोसेस पे, whether this imagination is good, whether this imagination is scientific imagination, whether it is philosophical imagination, whether this thinking is inductive thinking, deductive thinking, कौन सी थिंकिंग है, जब थिंकिंग पे अप्लाई करेंगे, जब रीजनिंग पे अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स लॉजिक। तो ethics is branch of axiology which studies human actions. Aesthetics is branch of axiology which studies objects, their appearance, उनकी appearance की बेस पे जब हम अगलीनेस और ब्यूटी का कॉन्सेप्ट देंगे, किस चीज़ को आर्ट कहेंगे, किस चीज़ को आर्ट नहीं कहेंगे, जब ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे, इट बिकम्स एस्थेटिक्स। और जब ह्यूमन रीजनिंग पे अप्लाई करेंगे, ह्यूमन थिंकिंग पे अप्लाई करेंगे, ह्यूमन के माइंड पे अप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स लॉजिक, माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट एक्सियोलॉजी। देन कम्स द क्वेश्चन, वैल्यू किस चीज़ को कहें, क्या वैल्यूज प्री डिटर्मिनेट है, क्या वैल्यूज इटर्नल है, या वैल्यूज चेंजिंग है, यानी किस चीज़ में वैल्यू है एस्थेटिक्स के हिसाब से, या किस थिंकिंग में कौन सा ह्यूमन एक्शन उसका वैल्यू है, किस ख्याल का एक वैल्यू है, यानी किस चीज़ को रेस्पेक्ट देंगे, किस आइडिया को रेस्पेक्ट देंगे, किस स्टैंडर्ड को रेस्पेक्ट देंगे, उस स्टडी को, मतलब उस चीज़ को समझने के लिए देयर आर डिफरेंट आइडियाज़, देयर आर डिफरेंट थेरीज। तो मैं दो
थेरीज की बात करूंगा, जो आइडियलिस्ट्स हैं, दे बिलीव दैट वैल्यूज आर इटर्नल, वैल्यूज चेंज नहीं होते हैं, ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ, इट कैन नेवर चेंज, वट एवर इज ट्रूथ टुडे it will be truth tomorrow, it was truth yesterday, whatever is beautiful today, it was beautiful yesterday, it will be beautiful tomorrow. Truth, beauty, goodness means they believe that values are eternal, values are never changing, values are already existing. Idealists believe like that, but pragmatists believe that only that human action has value which is useful, only that human action means ethics के लिहाज से उन्हीं ethics का वैल्यू है जो इंसान को फायदा पहुंचाए, उन्हीं थिंग्स, उन्हीं चीज़ों का फायदा है, उन्हीं चीज़ों का वैल्यू है विच आर यूजफुल, विच आर फंक्शनल। वही सोच सही है, वही रीजनिंग सही है, वही लॉजिक सही है विच इज़ यूजफुल, विच इज़ फंक्शनल, मीन्स दे बिलीव ऑन यूजफुलनेस ऑफ थिंग्स, they believe on usefulness of ideas, they believe on usefulness of values, criteria, norms, rules, they believe on the usefulness of thinking. यानी वही चीज़ बेहतर है, वही चीज़ उसी चीज़ का वैल्यू है जो इंसान को कोई फ़ायदा दे, because pragmatists always believe on functionality, that's why it is also called instrumentalism. So my dear students, this was all about axiology. It is enough for at BA level, it is enough for you my dear students. तो इस तरह से हमारा जो पहला यूनिट है वो हो गया my dear students. आप इसको अच्छे से एनालाइज करके स्टडी करेंगे, अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा you can ask me. Thank you, thanks a lot my dear students.